नुकु जो गिद्रम पढ़ा ची को अदो चेल कतम पढ़ा ची को ओना फीस पैसा ओका को हिजु कना पढ़ा दो ओरा करे खगी जैसे एक को चले कमिया ओना को पैसा ले दोहा जरवाया ना को फीस ले ᱧᱟᱢᱟ ओका दो कमी से हई चला ओना को कोई हो पढ़ा ची को तो लटुगो आमिन कुली मिया अबु माते आदिवासी बुहा कना बुन आर आइन बुझाव दाड़िया कना ते जतो गरम आयोगे से गरम बागी अपनार गिद्रे को बापला नेल अडी दरकार को आदो निया दो इኛ सवाल दो बांग कना पब्लिक सवाल कना कुछ हर को सवाले कान थना ती से बापला मेनते आदो आम दो नवा घरंज रेन जतो को उम्रदार हर कनाम आदो कटी आमा हुदिस विचार रे बोले चेल का मेन चुदा तीसम बापलाया जदू किसकू दो ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱟᱛᱟᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱚᱠᱚᱧ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱚᱠᱚᱧ ᱟᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱵᱟᱯᱞᱟᱭᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ पढ़ा मकोन लेन गी मोर हुआ तो सबों को जोहार। और आज हम फिर से आए हुए हैं जादू किस्कू के पास और एक ऑडियंस ने कमेंट किया था जो मैंने एगो वीडियो डाला था पहले इसका इंटरव्यू वीडियो, तो उसी वीडियो में एगो ऑडियंस ने कमेंट किया था जादू किस्मत से मिलने उनके गांव जाना है, प्लीज़ पता दे सकते हैं क्या। मैं कोई वीडियो नहीं बनाता, बस जाकर मिलना चाहता हूं और अपनी ओर से हौसले के लिए छोटा सा सहयोग करना चाहता हूं। तो ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जो है इसका नाम बापू गेमर नाम से ये इसका आईडी बना हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा और मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं मजबूर हो चला आया इसके पास वीडियो बनाने के लिए इस ऑडियंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा, शायद जो लोग नहीं जानते हैं इनका एड्रेस या इनका नाम और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। और सबसे उधर उस साइड में बैठे हुए ये उसकी बहन है, ये उसके पापा हैं, ये जादू है, ये उसकी मम्मी है और वो इसकी दादी माँ है। जादू किसको अपने मुंह से बताएंगे, ये अपने परिवार के सदस्य का जो नाम है और ये कौन कौन लगता है इनके, ये अपने मुंह से बताएंगे। तो प्लीज़ जादू आप बता दें अपने सभी लोगों का नाम सब और अपना नाम भी बता दें। So first of all, now I will tell my parents' name. You know, she is my sister. She's sister to me, and who have sat beside me. He is my father. Yes, he is father to me. And you know, that side you can see she's my mother. She's mother to me. And that side you can see, you know, and she has said she is my grandmother. तो ठीक है, इन्होंने बताया। और जादू किस्कू को मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि जो इन्होंने फराटेदार इंग्लिश सीखा हुआ है, कहाँ से सीखा है। तो मैं चाहूँगा फिर से आप ऑडियंस को ये बता दें कि आपने इंग्लिश स्पोकन कहाँ से सीखा। So I will tell now about my journey of learning English speaking. How did I start my journey? As you all can know that I speak English language daily and make videos on YouTube. So how did I learn English language? If you all want to know about me, so I will tell now. So actually, you know, and as you all know that I had dreaming of learning English language before many days ago, you can say. But when I was studying in KG class even, but that time, you know, I had no knowledge and I was unable to speak also English because I was knowing about English that I have to learn this language. But you know, because of I was not getting any idea that how do I have to learn, what do I have to learn, then I can speak English language. Then while studying in our school where I study, and then I passed 5 class around, so I started using a smartphone. But at that time, you know, with the situation where smartphone was very actually that time, but I had no any good smartphone that I could have learned English language from that smartphone. But that smartphone was keypad, you know, keypad mobile actually. That was a keypad mobile, but I wouldn't even have used internet on that mobile, and you know, let alone learning English language. But I couldn't even have learned, so that's why I didn't use that mobile in good way and for learning English language. And after that, you know, around when I passed in 6th class, when I passed 6th class, then I was going to school, and that time, you know, which my reading skills was good and I was able to read English good, but I was unable to speak English language, and that time
So when she had come to our school, Arupya High School, Bhatbanga, actually, name of the school is Arupya High School, Bhatbanga, where I study. So when she had come to our school from Patna, and she has developed the habit of teaching us English, that time she was set to teach us English. So when she was coming to our class, 6th class, that time she was teaching students of 6th class, and I was also one of them. And I was studying in 6th class, but I was unable to speak English language. So one day, she started teaching us English, and since then, she continued to teach us English. And actually, she was not speaking with us English, but that time, just I improved my reading skills, and I was reading English well, but I was unable to speak English language. But I had dreaming of learning English language, and I was watching also on YouTube related to English learning. Actually, I was unable to speak, and then when I passed 7th class, then I was getting, I was given idea to learn English language. I like how they have to learn English language. But actually, I used to know about grammar and which all grammar I have to learn. And then I was told about grammar also. But actually, only one grammar I was told by one father, was from Tamil Nadu. So when he told me about that grammar, which was tenses, and I started learning tenses. First of all, I learned the formulas of tenses, and I started making sentences by using tenses, and I started practicing. But that time I was practicing the forest, and I was, by the way, I was given idea, but that idea I was having to fulfill, and for that I was having to go to the forest because of my, because of my region, you can say. Actually, I was unable to speak English language at my home, you can say. But as my parents, they don't know English, so how can I speak English language? That's why I was going to the forest, and I was practicing English language in the forest. And that time, what was I doing? That just which smell I used to take, and then I was putting my mobile under a tree, and then I was practicing English language. But that time, with topic again and again I will speak, and on that topic again and again I will repeating, I was repeating. So due to that, I was unable to improve my English language. Like this, when I passed 8th class, so then I started getting a lot of idea also, and also idea of practicing, that how do I have to practice, how is English improved by the people, how are the people improving their English language. There I learned, and then watch one video on YouTube on English Vidyarthi Madam YouTube channel, and then she told about the idea to practice, and then I used that idea, and I learned, and then I started practicing in front of the mirror. And I bought one mirror. I said to my father to buy, and then he bought me my one mirror from the market, and he brought her, and then he said me, you have to hang it in the mirror at your home, and then you have to practice in the front of the mirror. And first of all, you have to take topic. And what was I doing for improving my English language? First of all, I used to, I'm reading English. First of all, any storybook you can read, like there are storybook available on YouTube also, and you can check out, you can buy from online also, and otherwise you can take a resorting of market. If market is the nearest to your village, you can go. And first of all, please buy one mirror. So I also bought, one storybook also, the newspaper also. And when I bought the newspaper, and then I started reading that in English. But because I was a learner of English, that's why I bought that. And then I started reading loudly. And I used to know that if I read now loudly the newspaper, then I can improve my English language also. Clarity of speaking can be improved. So then, I started reading the newspaper in English. And after that, I am also regularly, at a stretch, steadily, continuously, I am thinking also in English all the time, because thinking is very important. After the second part is thinking to improve your English and become fluent and confident also. And other like practicing. What is practicing? Like when you will not practice, you can't improve your English language. I used to know. So that's why I also started practicing. As I told you that I am practicing the front of mirror. But besides that, one way, like I used every day, I use that is by using pronoun. Like pronoun here in grammar book we can get, and we can know that all. And as you all know that also intermediate students can know that. So then I started using that according to tenses, according to modal verb. Like 3 tenses are very important, like modal verb, why family, also, and which is active and passive tenses. So by using that all, I was using pronoun I was using. And there are 4 types of sentences. One is affirmative, negative, interrogative, double interrogative. So with one pronoun I was making 4 sentences. For example, I will make 4 type of sentences by using like I go, do I go, why do I go, like this, like 4 sentences. Double interrogative, मैं क्यों जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, like this. क्या मैं नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ.
for type of sentence, affirmative, negative, double negative, interrogative, like this. And also with active and passive, also with model verb I was making. And you know, nowadays I'm also trying to do like this, and also besides studying other subject also, and other practicing. Just nowadays I'm talking with people and improving my English language. First of all, as you know that I improved my whole grammar, and by learning that all, and then nowadays just I'm practicing this all the way I use. And last way is to practice English language. That's like I talk with people the most, and there are a lot of application. And when I was told about this application, then I started using it. Just because I used to know a lot of application before for 3 months around, but actually I didn't use that all. But this application I knew that this is free, then I can use it and I can talk with people. So and then when I was told, and then I started talking with this application. Actually, this application name is Cambly Skype application. So then a lot of person, you know, I'm getting, and they are trying to connect with me also and meet with me also on Skype, and then I having conversation with them, and I upload also on YouTube. And also, you know, and I besides that, and I had, you know, motivated more by one video, and that video was of my YouTube channel, one YouTube channel. Actually, that YouTube channel name is Sandeep Maheshwari. I think you all will be knowing about him, that he is a motivational speaker. So he told on one short video about English topic that if you will make video in front of your mobile camera, then you will improve your English easily. But I can't say about it that you can get viral on YouTube, you can get money, but you will improve your English language. Don't skip, don't give up to make video, but you have to make video continuously. Definitely you will improve your English language. If you will make a video continuously at a stretch steadily, definitely within 1 year you can improve your English. So then I started that way, and nowadays I'm using that like this. I improved my English a lot, enhanced my English, and I enhanced myself really. Yes, like this I improved. तो जब से आप ये सीखे हुए हैं, इसके बाद से ये सोशल रिस्पॉन्स आपको किस तरह मिला हुआ है, और कहीं आपको बाहर जाने का मौका मिला है या नहीं मिला है? सो प्लीज हिंदी में बोलिए। एक्चुअली मैंने तो इंग्लिश भी सीख लिया है, अभी तो बाहर जाने का मौका भी मिला है। अभी मतलब जो जिसके द्वारा मैं मोटिवेटेड हुआ था, वो हमको बाहर भी ले जाना चाहता है, दिखाना चाहता है अपने कंट्री को भी कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पर कैसे क्या होता है, कैसे मार्केट होता है, सब कुछ। अच्छा, तो इसके सोशल जो रिस्पॉन्स था अच्छा मिल रहा है अभी, बिकॉज मैं वायरल हो चुका है यूट्यूब में, तो अभी लोग भी रिस्पेक्ट कर रहा है, हमको रिस्पेक्ट मिल रहा है लोगों के द्वारा। तो वो कहाँ आपको लेके जा रहा है, कौन सा जगह? एक्चुअली दैट एरिया, मतलब कि वो एरिया का नाम है तमिलनाडु, विच इज फॉलिंग इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया में पड़ता है वहाँ हम ले जाया जाएगा। अच्छा, हाँ। और आप, मुझे पता है कि आपको पता है कि कई सारे ऑडियंस को पता है कि आप दुमका गए हुए थे, तो वहाँ आपको जाके कैसा लगा? जब हम दुमका गए थे तो वहाँ पर एक्चुअली हमको इनवाइटेड किया गया था। एक्चुअली बिफोर 3 महीना के लिए एक्चुअली दुमका में जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स रखा हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वहाँ पर मैं भी गया था। लेकिन हमको पहले ही इनवाइटेड किया गया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। वो लोग मतलब 30 दिन, जैसे 30 दिन के लिए लगातार, मतलब कि मोस्टली जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स होता है 30 दिन के लिए होता है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो था डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल से आए थे, साहिबगंज से, जो भी मतलब जिला में, मतलब झारखंड से ऑल स्कूल अराउंड आए थे, जामताड़ा, ये सब हजारीबाग से भी आए थे कुछ स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर हमको इनवाइटेड किया गया था। पहले से इनवाइटेड, मतलब कि वो लोग किया था, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि एग्जाम चल रहा था, इसलिए बोले कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन लास्ट दिन जो प्रोग्राम होने जा रहा है, वो लोग जो वहाँ पर इंग्लिश स्पोकन कोर्स नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड डांसिंग सब कुछ होता है। कैसे तुम डांस सीख सकता है, कैसे तुम नेगेटिव सोच को मतलब खत्म कर सकता है, ये सब वहाँ पर सिखाया जाता है। तो इनवाइटेड किया था, मैंने बहुत अच्छा फील किया वहाँ पर। स्टूडेंट्स मतलब कि सेल्फी भी लिया, मतलब कि घूमे भी उसके साथ, सिटी एरिया था, तो अच्छा लगा उन लोगों से मिल करके। एंड स्पेंड भी 2 दिन स्पेंड किया टाइम, तो बहुत अच्छा लगा। उसको मोटिवेशन दिया, आइडिया दिया कैसे इंग्लिश सीखना है, क्या आइडिया मैंने यूज किया, वो लोग मतलब उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया होगा। अभी उन लोगों का, कुछ लोगों का नंबर भी है, मैंने रखा है। वो लोगों को पूछा, अभी तुम्हारा वीडियो से हम लोग भी सीख रहे थे, तुम बहुत अच्छा आइडिया दे रहा है। अभी जो भी मतलब आपने अपलोड किया यूट्यूब में, उसे हम लोग को लगता है कि हम लोग इंग्लिश सीख पाएंगे, बिकॉज मतलब बहुत अच्छा आइडिया है आपका वीडियो में, मतलब कि इंग्लिश सीखने का सब टिप्स है। तो बहुत अच्छा हमको लग रहा है ये जान करके। और जो आप दुमका गए थे उस जगह का नाम है जोहार। जोहार, हाँ बिल्कुल। जो ये एड्रेस आपका, बखूबी तौर पर से अभी जो लोग जादू किस्कू से मिलना चाहते हैं, इनके जो फैंस हैं, आप लोग बढ़िया तरीके से हम लोग बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। ये एड्रेस, ये एड्रेस है, गांव का नाम है इसका अपुरुल, प्रखंड पड़ता है बोरियो, जिला साहिबगंज, राज्य झारखंड, कंट्री इंडिया। तो अगर कोई आउट ऑफ झारखंड से हैं, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको उतरना पड़ सकता है, साहिबगंज में भी आप उतर सकते हैं।
तीन पहाड़ में भी उतर सकते हैं, पाकुड़ में भी या बररवा में भी। वहां से आप लोगों को आना है, बस से आना है, बोरियो आना है। और अगर साहेबगंज में उतरते हैं, वहां से आपको बोरियो के लिए आना है। और बांझी, अगर साहेबगंज से आ रहे हैं आप, बांझी से आगे एक भदभंगा स्कूल है जो ये पढ़ते हैं। कितना किलोमीटर हो सकता है वहां से? भदभंगा नहीं, वहाँ बांझी से यहाँ मेन रोड के पास। मेन रोड के पास मझोना हम्म। अराउंड 6 किलोमीटर। बांझी से आगे 6 किलोमीटर और मंझोना, हाँ मंझोना से लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हाँ, मंझोना टोटली से- किलोमीटर होगा 8 किलोमीटर ऐसा, 2 किलोमीटर इधर से इधर तक और उधर से 6 किलोमीटर। अब बोर्ड दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। वहां से अगर कोई आ रहे हैं, बोरियो से आ रहे हैं, तो सागर रोड में निकलिएगा। सागर रोड में मंझोना जैसे ही पहुंचिएगा, वहां से राइट साइड बोर्ड दिया हुआ है, स्कूल का नाम दिया हुआ है और तीर का निशान है। वहां से आप डायरेक्ट आइएगा, आप पूछिएगा किसी से भी, अप्रुल गांव जाना है हमको, इसका नाम पूछ लीजिएगा, जादू किसको का घर जाना है, तो कोई भी आपको इजीली बता देगा। और वैसे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे पूरा A to Z एड्रेस, और इसका नंबर भी शो हो जाएगा, और इसका जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो पिछला वीडियो में मैं आया था, लिया था, तो उसके पापा प्रेजेंट में नहीं थे, वो शायद मार्केट चले गए थे और उसकी बहन भी मार्केट गई हुई थी। तो मैं पूछना चाहूंगा इसके पापा से। तो हपन बा नुकु गिद्रम पढ़ा से को दिसम होड़ पासे अडी अधम हड़ दो हुदिसा पासे अडी किसम उड़ारन कनाय चेचो नुकुरी कान तको कु सिका कान तको कु अदो सरिया कथा से कना जो नुकु ऑडियंस नुकु ले सफा को मैं नुकु जो गिद्रम पढ़ा से को अदो चेल कतम पढ़ा से को ओना फीस पैसा ओका को हिजु कना पढ़ा दो ओड़ा करे खगी जैसे एक को चले कमिया ओना को पैसा ले दोहा जरवाया ना को फीस दे ᱧᱟᱢᱟ ओका दो कमी से हई चला ना को कोई हां पढ़ा के को। तो इसके पापा ने बोला कि ये मजदूरी करते हैं या घर का जो होता है इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके बच्चे के लिए फीस भरते हैं। और मोटिवेट होना चाहिए हम सभी लोगों को, हम सभी स्टूडेंट्स को जादू किसको को देखकर, क्योंकि ये जो आने वाली पीढ़ी है ये बहुत ही महंगा पीढ़ी आने वाली है और हम सभी को किसी न किसी तरह का रोजगार ढूंढना है अपने परिवार को चलाने के लिए। तो जादू आप जो न्यू पीढ़ी है आने वाली जनरेशन के लिए 2 शब्द में सोशल मैसेज बोलिए। मतलब अगर आप लोग भी मेरे तरह मतलब कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग इजीली सीख सकते हैं इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कि अभी इजी हो गया है। मतलब कि सबके लिए अभी मोबाइल जिसके पास है उनके लिए तो इजी हो वो सीख पाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत हार्ड से बोलने के लिए लोग नहीं मिलता कि इसके साथ बात करना है। जैसे मैं करता हूँ वैसे अगर आप लोग भी करते हैं, जैसे बिफोर वाले जैसे मैंने टिप्स सब बताया वैसे प्रैक्टिस करते हैं तो इम्प्रूव कर पाएंगे आप लोग भी इजीली। और अभी आप लोगों को मतलब बोलने के लिए भी मिल जाएंगे इजीली। उसके लिए एप्लीकेशन जो होता है स्काइप एप्लीकेशन आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें अननोन मतलब कि किसी भी नेम पर आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे लोग के मतलब अपीयर होगा जिसका जो लोग मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं आपके साथ, इंग्लिश में कन्वर्सेशन इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। लाइक दिस आप लोग टॉलकेटिव भी बन जाएंगे। और लोगों से टॉलकेटिव का मतलब होता है कि ज्यादा बात करना। इससे मतलब कि ये भी इंप्रूव हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट सब कुछ एवरीथिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव बन सकते हैं, कैसे लोगों से अलग अलग लोगों से मिलना है, मिलनसार बन सकते हैं। इससे मतलब कि ये इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों को हेल्प करता है अलग अलग लोगों से मिलने के लिए। जो हिंदी लैंग्वेज होता है, हिंदी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका मदर टंग को मतलब कि भूलना नहीं चाहिए। मदर टंग के साथ साथ इंग्लिश में भी आना, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश, लेकिन मदर टंग को भूलना नहीं चाहिए। मदर टंग इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेरा मदर टंग संताली है तो हमको नहीं भूलना चाहिए। अगर आप लोग का संताली मतलब किसी भी मदर टंग होगा तो उनको नहीं भूलना चाहिए। उसके साथ लैंग्वेज में अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं मोबाइल का इस्तेमाल करके। अभी मोबाइल में सब तरह का वीडियो भी मिलता है, तो इवन इंग्लिश मीडियम में भी सीखा जा सकता है। लेकिन सब स्टूडेंट्स का सिचुएशन जो होता है, इकोनॉमिक स्वरूप जो होता है, मतलब उन लोग पैसा नहीं दे पाता है। इंग्लिश मीडियम में ज्यादा चार्ज लगता है, फी लगता है, दैट्स व्हाई मतलब वो लोग नहीं देख पाता है। इसलिए मतलब वो लोग भी सीख सकता है जस्ट मोबाइल का सही उपयोग करके, यूट्यूब का सहारा ले करके, वहां पर वीडियो ऐसे वीडियो देख करके जो जिसमें मतलब इंग्लिश सीखा जा सके। जिस तरह का मतलब जिस लैंग्वेज आप लोग सीखना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज भी, उसी लैंग्वेज वाला वीडियो आप लोगों को दिखना है, डेवलप करना है हैबिट्स को, और एवरीडे वाचिंग करना है। डेफिनेटली आप लोग सीख पाएंगे। हाँ,
अगर आप लोग मतलब कि किसी दिन मतलब कि जैसे आप लोग अगर मेरे तरह इंग्लिश सीख रहे होते, अभी सीख रहे हैं करेंटली, तो अगर आप लोग मिस्टेक करेंगे तो मिस्टेक करने से मतलब आप लोगों को डरना नहीं है, मिस्टेक से सीखना है। मिस्टेक एवरी पर्सन के साथ होता है। आप जब आप लोग बाइक चलाते हैं, शुरू में मिस्टेक होता है, ये नहीं कि बाइक मैंने नहीं चला पाया तो उसको स्टॉप कर दूंगा, नहीं ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो मतलब कि इंग्लिश सीखने अगर सीखना मतलब कि मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मतलब कंटिन्यूअसली उसको सीखना है, तभी मतलब कि सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज फल नहीं मिलेगा इंग्लिश का। तो यही बोलकर मैं अंत करता हूँ। और आज पिछला बार मैं आया था, इसका छोटा भाई था, आज इसकी बहन है। इसकी बहन से भी दो शब्द कुछ पूछा जाए तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दें, आप कहाँ पढ़ते हैं, कितना क्लास में? मेरा नाम है सोनाली किस्कू। मैं अरुपे हाई स्कूल भदभंगा में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 8 में अभी पढ़ रहे हूँ। तो आप 8 में पढ़ रहे हैं, तो आपके भैया इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, तो आपको कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट में? हेल्प तो मिल रहा ही है, लेकिन अभी हम सीखने का मतलब कि सीख रहे हैं अभी आप? अभी सीख रहे हैं। हाँ, जरूर जरूर। और इसी तरह कोशिश कीजिए ताकि आप भी अपने भैया की तरह फराटेदार इंग्लिश बोलिए, और लाइफ में किसी भी फील्ड में आप एक फील्ड में आगे बढ़िए, आपको सक्सेस जरूर से जरूर मिलेगी ही मिलेगी। तो लेटुगो आमिन कुली मिया अबू माते आदिवासी बुहा कना बुन, और इन बुझे दाड़िया कना ते जतो गरम आयोगे से गरम बागी अपनार गिद्रे को बापला नेल अडी दरकार को। आदो निया दो इन्या सवाल दो बांग कना, पब्लिक सवाल कना, कुछ होड़ को सवाल कान थना ती से बापला मेनते। आदो आम दो नवा घरंज रेन जतो को उम्रदार होड़ कनाम, आदो कटी आमा हुदिस विचार रे बोले चेल का मेन चुदा तीसम बापलाया जदू किसकू दो? ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱟᱛᱟᱲ ᱜᱮᱭᱟ, ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱚᱠᱚᱧ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ। पढ़ा मकोño आने कतम बापलाया बाखाय दो पढ़ाव मकोñ लेन गे उम्र हुआ तो। और इन्होंने जो जवाब दिया बहुत ही अच्छा जवाब दिया, काफी समझने वाली जवाब है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लड़का हो या लड़की थोड़ा बहुत बड़े हो जाते हैं, उनका उम्र हो जाता है, उनका शरीर दिखने लगता है कि हाँ ये शादी करने लायक हो गए हैं, तो उनका शादी करा देते हैं। तो इन्होंने बहुत समझदारी के साथ जवाब दिया, अभी मैं इनका शादी नहीं कराएंगे, जब ये पढ़ लिख कर कुछ अपने पैरों पे जब तक खड़े नहीं होते हैं तब तक इनका शादी नहीं होगा। और यही सोच हम आदिवासी भाइयों में होना चाहिए, हम सभी में होना चाहिए। अपने स्टूडेंट्स को शादी तब करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा। तो शायद ये वीडियो काफी लंबा चौड़ा हो गया है, और जादू किसको जो लोग आप जो ऑडियंस आपका चैनल का नाम नहीं जानते हैं, आप बता दें आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा YouTube चैनल का नाम जो होता है इंग्लिश विद जादू है। आप लोग जादू किसको भी सर्च कर सकते हैं, अभी तो वायरल हो गया। एक्चुअली मेरा नाम जादू किसको है, जादू किसको से भी सर्च कर सकते हो, आ सकता अपीयर हो सकता है चैनल का नाम, ये सब बायोडाटा वीडियो का सब कुछ अपीयर हो सकता है। तो ठीक है, जो लोग इसका चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, मैं इनका चैनल का लिंक और इनका एड्रेस विथ मोबाइल नंबर। अच्छा, और एक सवाल है, जो आदिवासी भाई या कोई भी भाई या कोई भी इंसान या कोई भी ऑडियंस जो आपके सब्सक्राइबर हैं या नहीं भी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो क्या आप उनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे जरूर। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं मिलने के लिए तो आ सकते हैं, जैसे एड्रेस बताया गया है। फिर से मैं एड्रेस बताना चाहता हूँ। हाँ, मैं तो झारखंड से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट नेम जो होता है साहेबगंज, मेरा गांव का नाम अप्रोल है, अप्रोल तलाटला मेरा गांव का नाम, और जो क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो भी अप्रोल ही है, और प्रखंड जो होता है बोरियो पड़ता है, जिला साहेबगंज, झारखंड स्टेट, एंड कंट्री जो होता है हम लोग भारत देश से बिलोंग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और यही होना चाहिए, यही पॉजिटिव सोच होना चाहिए। सोशल या समाज में जीने के लिए आपको घमंड कभी नहीं करना चाहिए, सबों से अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो शायद काफी लंबा चौड़ा हो गया है, और ज्यादा ना बात करके ये वीडियो नहीं यहीं पर हम लोग अंत करते हैं। तो लास्ट में हम लोगों की ओर से जोहार।